Hi friends, welcome to our channel Education Hub. Today we are here to give you another important lecture related to database management system, that is nothing but database transaction. Now before starting that, once again I have to tell you, if you like at the end of the video, then don't forget to like and share our videos. And for more and more this type of videos, subscribe our channel and press the bell icon. Now let's start today's topic, that is transaction in database management system. Now by the name you can able to get, whenever one side is given to another side, that is one transaction, one change of data is going on, that is called our database transaction. Now in case of database, there the read write operation, by using that we will try to discuss it. So at a glance we can say, suppose someone is giving you something and you are taking, that is nothing but transaction. Now how this transaction is committed in computer database and how they will do it, that is discussion topic our today. Those who are computer professional, they knew the term very well. Those who are not, by listening this video, they can also able to get how the transaction of bank or any other can be going on. So let's start today's topic. See here, that concept is given. The transaction is a unit of program execution that accesses and possibly updates, manipulates the data items. क्या है ये? Suppose for example we are taking read A. Suppose A कुछ transaction 550 rupees is transfer from A's account to B's account. तो क्या होना चाहिए? पहले read the A's account, then A minus 50, then write A, read B, B plus 50, then write B. ये है टोटल ट्रांजैक्शन. अब कहीं भी किसी भी टाइम हम लोगों का फेलियर्स आ सकता है. अब इसे अगर फेलियर्स हो गए किसी टाइम ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, सपोज यहाँ पे 6 स्टेप्स है, तो 6 स्टेप्स के बीच में कहीं पे भी एक ट्रांजैक्शन के हमारे इसे स्टॉप हो गए, देन कैसे इसे यूज़ करें, किस तरीके से इसे हैंडल करें, यही हमारे आज के डिस्कशन के टॉपिक है. यहाँ पे फेलियर ऑफ वेरियस काइंड्स, अगर लिखने के पहले, सपोज यहाँ से ए से माइनस हुआ, बी पे आने के पहले ही फेलियर्स हो गए सिस्टम, कैसे उसे हैंडल करें, बी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं. सी हियर, वही ट्रांजैक्शन हमने फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे 2 प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. एक है एटोमिसिटी रिक्वायरमेंट, अनदर इज ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट. एटोमिसिटी मीन्स व्हाट? यहाँ पे अगर ये स्टेप्स 3 के पहले, सपोज पूरा स्टेप्स नहीं हुआ, 3 तक हुआ, आफ्टर 3 स्टॉप हो गए, सो मनी तो डिडक्ट हो गए ए से, लेकिन बी तक पहुंचा नहीं, उसके पहले लॉस्ट हो गया. एन इनकॉन्सिस्टेंट डेटाबेस स्टेट कहते हैं इसे हम लोग, इनकॉन्सिस्टेंट डेटाबेस स्टेट. दिस सिस्टम ensure that update or partially execution of transaction are not reflect in the database. मतलब B के डेटाबेस तो ऐड हुआ ही नहीं, A से माइनस हो चुका है. ऐसी टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे. यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन को स्क्रीन से आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली रिक्वायर्ड ऑफ एव एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग A एंड B को इंटरचेंज कर रहे हैं. सी हियर, द सम ऑफ A एंड B unchanged, the execution of the transaction. In general, consistency required explicitly specified integrity constants.
such as primary keys and foreign keys. An implicit integration, for example, sum of the balance of the account minus sum of loan amount, sum of other accounts, cash in hand, we will handle it by the consistent database. During the transaction, execution of database may be temporarily inconsistent. When the transaction is complete successfully, the database is consistent. मतलब क्या है, जब काम चल रहा है उस टाइम किसी भी वक्त अगर कुछ फेलियर्स हो गए तो वो उसे इनकंसिस्टेंट कह रहे हैं हम लोग. अदरवाइज हम लोग इसको पूरा कंसिस्टेंट डेटाबेस हो रहा है जब ये पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो रहा है. अगर ये ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इस बीच में रुक गया बीचों बीच, देन वी हैव टू से दिस इज इनकंसिस्टेंट डेटाबेस. नाउ देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे. ए से पहले हम लोग ए का बैलेंस क्या है कितना चेक करेंगे, उससे 50 माइनस कर रहे हैं. फिर 50 माइनस होके क्या हुआ उसे हम लोग राइट कर रहे हैं बी में. उसके बाद अगर ये हो गए देन हम लोग बी से कर रहे हैं सी. देखिए यहाँ पे हम लोग आइसोलेशन रिक्वायरमेंट कुछ बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, ए रीड करके राइट कर रहा है. रीड ए बी एंड देयर वी आर ए प्लस बी, इसको हम लोग प्रिंट करके रख रहे हैं. ए में क्या है बी में क्या है. उसके बाद फिर से बी का काउंट कर रहे हैं. तो आइसोलेशन बता रहे हैं इफ ए steps 3 and 6 in between another transaction T2 is allotted. T1 जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है. T2 अगर allotted हो गए access partially, then update the database and it will see the inconsistent database. A plus B will see lesser than should be. यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग A और B को रीड करके A plus B करके रख रहे हैं. A plus B, A से अगर 50 माइनस हो रहा है, बी से अगर प्लस हो रहा है तो ए प्लस बी तो सब टाइम सेम होना चाहिए. ऐसे हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए आइसोलेशन कैन बी इंश्योर्ड ट्रिवियली बाय रनिंग द ट्रांजैक्शन सीरियली, दैट इज वन आफ्टर अनदर. नाउ अगर एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजैक्शन आ गए तो उसे हम लोग कॉन्करेंटली सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स एज वेल एज वी कैन सी कैसे इसे हैंडल करेंगे. देखते हैं आगे ये सब सारे चीज़ें. यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से मैं बता रही हूँ, ए से 50 माइनस होके बी पे आ रहा है एंड इन बिटवीन दिस ये 3 और 4 स्टेप्स के बीच में T2 और एक ट्रांजैक्शन आ गया है. T2 ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है ए को बी को और राइट करके दे रहा है. So here we can able to see what's going on. Another transaction is interrupted. So the isolation the concept was that कि कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उससे पहले कंप्लीट करें. एक चीज़ को कंप्लीट करके उस टाइम जब होगा वही इंडिविजुअल होगा, उसी को लेके करते हैं. इसलिए हम लोग एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं इन आवर ट्रांजैक्शन. क्या है ये एसिड प्रॉपर्टी? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन and durability. This is nothing but acid. ACID. See, इसमें क्या कहते हैं, either all operations of the transactions are properly reflect in the database or none on one. अगर सारी चीज़ें टोटली हो तो इसे होगा, नहीं तो नहीं. इसे कह रहे हैं हम एटोमिसिटी, मतलब एटॉमिक वन. Next, consistency. Execution of the transaction in isolation preserve the consistency of the database or not. अगर जो भी हम लोग डेटाबेस कर रहे हैं उसे पूरा कंप्लीट करके टोटल होना रिफ्लेक्शन डेटाबेस तक पहुंचे या कुछ भी ना पहुंचे. Another is isolation. Although the multiple transaction may be execution concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently executing transaction.
मतलब हमारे आगे पीछे कुछ भी ट्रांजैक्शन चल सकता है, साथ में भी मेरा ट्रांजैक्शन मेरा है, मुझे अवेयर होने की जरूरत नहीं है आसपास क्या हो रहा है, मेरा को काम को पूरा कंप्लीट करके ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन तक पहुंचाना है. नेक्स्ट वन इज ड्यूरेबिलिटी. That is, after transaction completes successfully, the changes has made the database persist if there are system failures. कुछ भी काम हो जाए, हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सक्सेसफुली, ये डेटाबेस को चेंज करे. अब उस डेटाबेस एग्जिस्ट करे ना एग्जिस्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं. That is asset property. Now we have to know the transaction steps. Different transaction steps करने के पहले हम लोगों को ट्रांजैक्शन के डिफरेंट स्टेट्स देखना है. हम एक पिक्टोरियल व्यू में भी देख लेंगे. देखिए इसमें है एक्टिव, partially committed, fails, aborted and committed. By the name we can able to get क्या है ये. एक्टिव मतलब जो काम चल रहा है, initial state, transaction stage, as well as it is executing part. Partially committed, कुछ हद तक काम हो चुका है. ये पिक्चोरियल व्यू मैंने पहले दिखा दे रही हूँ, मैं उसे डिस्कस कर रही हूँ, उसके साथ में इसे दिखा रही हूँ. एक्टिव, इससे दो परम जा सकता है, आइदर फेल हो सकते हैं या पार्शियली कमिटेड. पार्शियली कमिटेड से भी फेल हो सकता है या पार्शियली कमिटेड से कमिटेड हो सकता है. फेल से अबॉर्टेड हो सकता है, निकल सकता है. पिक्टोरियल व्यू यू कैन एबल टू सी फ्रॉम द स्क्रीन. अब इसमें क्या हो रहा है, तब मैं बता रही थी एक्टिव मतलब है फुल्ली एक्टिव, मतलब where the execution is going on. After execution हम बैक किए हैं फिर से. partially committed after final statement has been executed. फेल क्या हो सकता है, आफ्टर डिस्कवरी दैट नॉर्मल एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी सो लॉन्गर प्रोसीड, वहाँ से पूरा फेल होके निकल गए. अबॉर्टेड, आफ्टर ट्रांजैक्शन हैज बीन रोल्ड बैक द डेटाबेस रिस्टोर टू द स्टेट प्रायर to restart the transaction or start the transaction, or two option has been aborted. Committed, सक्सेशन हो गया है, फुल्ली काम हो चुका है, उसके बाद कमिट कर दिया. अबॉर्ट करना बाय द नेम यू कैन एबल टू गेट, मतलब रोल बैक करके लौटा लाना. कुछ काम हुआ था, देखा कि नहीं हो रहा है, तो फिर से उसे रोल बैक करके लाए. अगर नहीं हो सकता है तो गो आउट. That is the state of transaction. Now from the pictorial view also you are able to get, मैं फिर से बता रही हूँ transaction states हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है. We know the transaction state very well. That is active, चल रहा, which is continuing, executing. Partially committed, that means after completion come, we are stopping the, we are partially committed and then commit nikal. But if it is not committed fully, after partially committed you can able to get, it can goes to fails or aborted conditions also. Fails and aborts condition means fail means totally failure, and aborted transaction is rolled back and the database restored its states prior to the states of the transaction. Again I am reflecting the on the screen. Again I am coming this pictorial view that will be better for you to understand it. See it. यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को बता देना ज़रूरी है, ट्रांजैक्शन की जो डिफरेंट स्टेट्स है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है हम लोगों के कैसे ट्रांजैक्शन होगा, कैसे उससे हम लोग मतलब एसिड प्रॉपर्टी यूज़ करें और कुछ भी. ये ट्रांजैक्शन स्टेट्स इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है. I show you the picture once again. It will be better to you to understand it. इस वीडियो आपके हर टाइप का ट्रांजैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है. At the end of the video, you can able to see ये ट्रांजैक्शन कैसे है और क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए, implementation of atomicity and durability. How to implement? We are telling that
we have this asset property, we have to implement in our all transactions. तो कैसे इसे transact में कर रहे हैं? First one, recovery management components of database system implements the support for atomicity and durability. मतलब रिकवरी मैनेजमेंट जो है उनके डेटाबेस का काम वो ऐसे ही काम करते हैं. देखिए पिक्टोरियल व्यूज़ में आप देख सकते हैं, इसमें डीपी पॉइंटर के कुछ पॉइंट्स है. वो पॉइंटर क्या कर रहे हैं, ओल्ड कॉपी ऑफ द डेटाबेस बिफोर अपडेट इसे रख रहे हैं. अब वहाँ से पॉइंटर को शिफ्ट कर रहा है न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस में. यहाँ पे ऑल अपडेट्स आर मेड ऑन अ शैडो कॉपी ऑफ द डेटाबेस. जो भी शैडो कॉपी है जिसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, मतलब अपडेटेड कॉपी है, वहाँ पे पुराना को रख के नए में ये पॉइंटर शिफ्ट हो रहा है. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्टोरियल व्यू. इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी जो भी हम लोगों का नया डेटाबेस है, उस नया डेटाबेस को हम लोग पुराना डेटाबेस में जो है उसे हम लोग रख के जो नया कॉपी आ रहा है उसमें हम लोग पॉइंटर को फिक्स कर रहे हैं. मतलब वहाँ पे हम लोगों का एटोमिसिटी जो कंप्लीट एक चीज़ को एक ही टाइम कर रहा है, और द ड्यूरेबिलिटी मतलब टोटल कंप्लीशन हुआ है या नहीं, टोटल कोई भी ट्रांजैक्शन बीच में रुक गया या नहीं, वो सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं. यही है एटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी. अब यहाँ पे मैं फिर से उसी जो पिक्टोरियल व्यू दिया था उसको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ. देखिए जैसे कुछ डीबी पॉइंटर ऑलवेज points the current consistent copy of the database. A shadow of the database will be shown here. क्या है ये? DB pointer जो भी है, उस DB pointer always सब टाइम देखता है कि क्या है. जो है हमारे पास वो तो हमारे ही है. नया जो कॉपी है इसमें अगर कुछ फेल्स हो गए, कुछ ऑड कंसिस्टेंट कॉपी आ गए, कुछ भी आए, उस डिटेल को हम लोग पहले कॉपी करते हैं, उसको देखते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं डीबी पॉइंटर्स में. यही हम लोगों का काम होता है. यू कैन एबल टू सी फ्रॉम हियर. अब इसके बाद हमें और भी कुछ डिस्कशन करना है. यहाँ पे वी विल डिस्कस इट. इसके पहले कुछ चीज़ें हमको बता देना ज़रूरी है यहाँ पे कि अगर कोई ये जो कह रहे हैं ना द शैडो डेटाबेस स्कीम, ये शैडो डेटाबेस स्कीम क्या है? शैडो डेटाबेस स्कीम ये है कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ओनली वन ट्रांजैक्शन इज एक्टिव. कंकरेंटली कुछ भी चल सकता है, हम लोग पहले ही बताए कि उसको हमें देखना नहीं है, और मुझे देखना है कि मेरा काम फेल ना हो जाए. तो अगर ये फेल नहीं हुए तो नया एक कॉपी बना, उस कॉपी को हम लोग शैडो बोल रहे हैं. इससे हम लोग यूजफुल टेक्स्ट एडिटर के हिसाब से हैंडल कर रहे हैं. हम लोग डजंट हैंडल एनी टाइप ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन. मतलब हमारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए वही हमारा काम है. उसमें 4 स्टेप्स सही से सारे स्टेप्स, नॉट 4 स्टेप, 4 conditions fulfill हो, and all the steps will be followed properly and it will be fully committed. Then we will say our execution is okay. अब लेकिन ऐसा तो होगा नहीं ना, सब टाइम concurrent execution will be there. So if this concurrent execution will be there, then what will happen? The multiple transactions are allowed to run the concurrently in the system. The advantages are, that is, increase the processor and disk utilization, leading the better transaction throughput, reduce the average response time of the transactions, and also concurrently control the scheme mechanism, archive the isolations. क्या है ये सारी चीज़ें? Now we have to discuss it right now. So from this concurrent execution, we can able to say that the concurrency control scheme mechanism archive the isolation.
मतलब जो भी काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी हो रहा है यहाँ पे कंकरेंट एग्जीक्यूशन, मतलब एक से बढ़कर दो एक साथ में चल रहा है, तो मल्टीपल एग्जीक्यूशन के कॉन्करेंसी हो रहा है। अब हम लोगों को जो टर्म्स की ज़रूरत है, दैट इज़ द टर्म्स ऑफ शेड्यूल. By the name you can able to get the sequence of work, the sequence of instruction that specified the chronological order by which the instructions of the concurrent transaction is being executed. That means if I have more than one transaction, then obviously by follows some sequence it will be going on, and that is nothing but the schedule. मतलब जो भी हम लोग एक शेड्यूल कर रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 बहुत ट्रांजैक्शन एक साथ में हो, तो उसे हम लोग कैसे हैंडल करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम देयर द ट्रांजैक्शन 1 जो हम लोग पहले से ही बता रहे थे, ए से 50 माइनस हो रहा है, बी में जा रहा है. ट्रांजैक्शन 2 इज टेलिंग ए से it will read the 0.1% 1 to A से 1% माइनस हो रहा है और वही 1% B पे जा रहा है. ये दो शेड्यूल, इस शेड्यूलिंग में दो ट्रांजैक्शन को हम लोग दे रहे हैं. कैसे कैसे क्या हो रहा है, सी फ्रॉम देयर. वन ट्रांजैक्शन ऑफ T1 it will be completed, then only T2 is start. That is one possibilities कि पहले T1 पूरा हो जाए फिर T2 हो. इसमें कोई कॉन्करेंसी की ज़रूरत नहीं है, कोई दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं. एक हो रहा है उसके बाद दूसरा आ रहा है. ये एक पॉसिबिलिटीज़ है. अब हर टाइम सभी ऐसे सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर सकते. इफ़ द A is followed the transaction totally, after completion of T1 the T2 transactions comes and it will execute. That is the one process, it will be better. But all time it will not follow this sequence. Then what will happen? That we will discuss right now. So at first, several steps, what way it will goes on, we are discussing that. Now the next one. See here telling, agar T2 is telling that he needs more urgent, then T2 will complete, then T1. So the serial order T2 will be followed by T1. It is also possible T1 followed by T2 or T2 followed by T1. Both is possible. Now if it is not, मतलब T2 पहले हो जाए उसके बाद T1 आ जाए, ये भी हो सकता था. लेकिन अगर ये भी नहीं हुआ, then क्या हो सकता है? Then what the schedules will be, all the possibilities of the schedules we are discussing, where the concurrency will be not occurred, where we can able to control the concurrency. That is our topic right now. So at first we show, पहले हमने देखा T1 completion, after completion of T1 T2 हो रहा है. अब T2 पहले हो रहा है, उसके बाद after completion of T2 T1 हो रहा है. It is also possible. If not, if that is also not, then what will happen? That is whether, see here in case of T1 and T2, अगर बीच में दोनों अटक गए, सपोज T1 को 50 तक रीड किया, राइट किया, 50 माइनस हुआ, उसके बाद A का और एक स्टेप्स 10% जो डिडक्शन है वो भी हो गया, उसके बाद B का 50 ऐड हुआ, फी का 10% ऐड हुआ. यहाँ पे क्या हो रहा है? लेट T1 एंड T2 ट्रांजैक्शन डिफाइन सेपरेटली. देखो T2 T1 में क्या क्या हो रहा था. T1 में पहले T1 कंप्लीशन T2 हो रहा था, फिर T2 में क्या हुआ, T2 कंप्लीशन T1 हो रहा था. इसमें जो इफेक्ट है T3 में क्या हो रहा है, T3 में हो रहा है T1 50 डिडक्ट हो गया, T2 का 10% डिडक्शन की भी A में हो गया, मतलब A का फुल इफेक्ट हो गया. नेक्स्ट वी विल ट्राई द B part. Here the schedule 1, 2 and 3, that is sum of A and B, that is also preserved here also. That effect is also preserved here. So this is schedule 3. That is also possible. All transaction related to T1 done. Then all transaction related to T2
sorry, B. All transaction A and B was done. Now comes to there. If A से 50 minus हुआ, see here, A read, then A minus 50. Deduction हुआ, but it will be not yet right. So read करेंगे A को, मतलब वही previous where पे 50 add है वो वाला आ गया. अब ये वाले में अगर फिर से 10% डिडक्ट हुआ तो प्रॉपर रिजल्टेंट वी कैन नॉट एबल टू गेट. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हम लोग देखा सपोज ए में 100 है, 50 माइनस होने के बाद उसे राइट नहीं किया, मतलब अभी तक 100 शो कर रहा है. उस वक्त अगर फिर से ए का ट्रांजैक्शन हुआ तो उसका 10% जो है वो 100 का 10% चला गया, 50 का नहीं. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. देयर द कॉन्करेंसी विल ऑकर. To maintain that, we have to follow the serialibility. So our today's right now topic is serialibility. Let's discuss that. Discussion over the serialibility. यहाँ पे basic assumptions क्या करना है हम लोगों को. Each transaction preserve the database consistency, ये हमें पकड़ लेना है. अगर इस बीच में transaction failures हो गए वो हम लोग सोचे तो serialibility maintain नहीं कर सकते. We have to assume, we have to take only those whose transactions are processed, preserve the total database consistency. मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका रीड राइट टोटल ऑपरेशंस होके वो पूरा कमिटेड तक जाएगा सक्सेसफुली. इसके लिए हम लोग कन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस कुछ फॉलो कर रहे हैं. फ्रॉम द स्क्रीन यू कैन ऑल्सो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस AI, and IJ of transaction TI and TJ respectively conflict if and only if there exist some items, some queue accessed by both, that is TII and IJ, and at least one of these instructions is wrote in queue. Now II will read queue, IJ will read queue. Both are reading the queue. Then both, in case of first one also read position, second one comes to write. Then second one will be read position, first one will write, and all are right. That is also read read, read write, write read, write write. These are, they all are conflict. They are known as they conflict. And initially a conflict between I and J forces temporal order between them. That means the logical. Now see here if IJ consecutive in a schedule, they don't conflict. They gives you the conflict serialibility. That is, if schedule S can be transformed into S prime by a series of swap non-conflicting instruction, we say S and S prime will conflict equivalent. We say that S is conflict serializable. It is conflict equivalent to the serial schedule. अब इस चीज़ों को मुझे बताना है क्या है. एक्चुअली जो हम लोग बता रहे हैं रीड रीड, रीड राइट, राइट रीड, रीड राइट राइट, ये सारी चीज़ें अगर हो रहा है तो इसे हम लोग कन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, मतलब एक के साथ एक को कन्फ्लिक्ट हो रहा है. अगर एक ट्रांजैक्शन को हम लोग स्वैप करके इस ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद S2 कर रहे हैं, S प्राइम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलिबिलिटी कर रहे हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे रीड ए राइट ए, रीड ए राइट ए ट्रांजैक्शन 2 का हो गया. जैसे हम लोग नंबर 3 शेड्यूल कुछ देर पहले देखा है, आप लोग बैक करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ए का काम है T1 T2 का पूरा हो गया, फिर बी का काम शुरू हुआ, या ए का पूरा ए एंड बी बोथ का T1 का कंप्लीट हो गया, फिर T2 का हुआ, या इसका अपोजिट हुआ. इसे हम लोग कन्फ्लिक्ट सीरियलिबिलिटी कह रहे हैं. मतलब कोई कन्फ्लिक्शन इसमें नहीं हो रहा है, जैसे हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल पे देख चुके थे. लेकिन अगर उसमें ऑपोजिट हो रहा है, ए का होते होते बी हो रहा है, बी का होते होते ए हो रहा है,
तो वहाँ पे कन्फ्लिक्शन आ रहा है। हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल में पहले देख चुके हैं, आप प्रीवियस करके वीडियो को फिर से एक बार देख सकते हैं। तो अगर इसे हम वी हैव टू ओमिट इट, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल दैट conflict seriality will be maintained अगर हम लोग स्वैप बाय यूजिंग द स्वैप ऑपरेशन s एंड s प्राइम को सही से इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पे जो शेड्यूल 3 का एग्जांपल दिया हुआ है वहाँ पे अगर आप फॉलो करें तो देख सकते हैं ए रीड राइट हो रहा है T1 ट्रांजैक्शन के लिए, फिर T2 के लिए, फिर B का काम आ रहा है T1 के लिए, T2 के लिए। दैट इज नोन एज आवर शेड्यूल 3। I think it is clear right now. Go through it once. Now, the terms is coming that how the serialability maintain. अगर ये maintain हो रहा है सही से तो इसको हम लोग conflict serialability कह रहे हैं। I think you can able to got non-conflicting instructions किसे कह रहे हैं, अगर सही से swap हो रहा है। सी यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे क्या किए हैं, एग्जाम्पल शेड्यूल दैट नॉट कन्फ्लिक्ट सीरियलिबिलिटी। रीड हो गया क्यू ट्रांजैक्शन 3 के लिए, राइट हो गया क्यू T4 के लिए, उसके बाद हम लोग राइट कर रहे हैं T3 के लिए। हियर वी अनएबल टू स्वैप द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द अबव शेड्यूल आइदर इन सीरियल T3 लेसर देन T3 and greater than T4. If this type of schedules is occurring, then we are calling this is a serial schedule T4, T3. Within the angular bracket, you can see this in the screen. It will be shown to you. So this is the conflict serialability. I think right now you can able to get, मतलब एक का ऑपरेशन होना है एकदम सीरियल, उसके बाद दूसरे का। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहा है, ये था conflict serialability, अब आ रहा है view serialability. Now, view serialability क्या है? If S1 and S prime, two schedules which have same sets of transactions. See here from this example you can see read T3, write T4, then write T3, then write T6. Here the schedule of view serialability if it is view equivalent schedule. एवरी कन्फ्लिक्ट शेड्यूल्स यहाँ पे अगर सही से व्यू हो रहा है, वही ट्रांजैक्शन फिर से हम लोग शो कर रहे हैं, वही एग्जांपल सी हियर टी का हो गया, फिर बी का हो गया, फिर बी का हुआ, फिर ए का हुआ। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर ए को प्लस करना है उसके पहले ए को प्लस करना है कुछ ऑपरेशंस, सी हियर बी से माइनस कर रहे हैं तो वो पहले हो रहा है, उसके बाद ही ए का पॉसिबल है। ए का पहले हो गया, कहाँ से दे? If you are transferring this, then how can it possible from one to another location without informing any other? That notation you have to maintain. See here, the serial schedules notations is given here. अगर हमें within angular bracket we are showing the two transaction, इसके मतलब है एक ट्रांजैक्शन के बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है। is determining such equivalence required any analysis of operation other than read and write. So this is nothing but our notations of serialability. अब ये जो serialability है, the schedule below product same the overcome serial schedules yet not conflict equivalent of few conflict serialability will be shown. From the screen, please follow the transaction. It will be better for you to understand. तो मतलब क्या हुआ, व्यू सीरियलिबिलिटी भी हम लोग देखा कि कैसे एक ट्रांजैक्शन सही का एक ही टाइप का हुआ तो एक के बाद एक का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन किसको लेके क्या हो रहा है उसको पहले से हम लोग को दिखाना है। सो यू कैन एबल टू सी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रिकवरेबल शेड्यूल किसे कहते हैं। अगर कुछ डैमेज हो गया है तो उसे रिकवरेबल कैसे बताए वो हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं। सो देखिए पहले क्या किए हम लोग, रीड किए ए, राइट किए ए। सो जिससे हम लोग कह रहे हैं रिकवरेबल शेड्यूल्स क्या है। इफ ट्रांजैक्शन T1 रीड्स अ डेटा आइटम
previously written by transaction I, then commit the operation Ti appears before the commit operation of Tj. कमिट क्या हो रहा है, रीड को हम लोग कमिट कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए पहले T8 का ट्रांजैक्शन का रीड ए राइट ए हो गया, तो पहले उसे कमिट करके फिर ओनली इट इज़ पॉसिबल टू रीड अनदर. राइट हो जाना मतलब कमिट हो जा रहा है, रीड हो जाना मतलब भी कमिट हो सकता है अगर उसे हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं, और एल्स राइट हो जाना मतलब पूरा उसमें आ गया है. अगर राइट हो गया उसके बाद हम लोग नया राइट करें तो वो पॉसिबल है, उसे हम लोग रिकवरेबल शेड्यूल कह रहे हैं. यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन ऑन द स्क्रीन. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर फ्रॉम. तो हम लोग आज जो सीखे वो अभी तक के ट्रांजैक्शंस के कॉन्फ्लिक्ट सीरियलिबिलिटी, व्यू सीरियलिबिलिटी. उसके बाद अगर ये कन्फ्लिक्शन आ गए उसे हम लोग कैसे कहते हैं, कैसे रिकवर करें. उसका अनदर स्टेप्स इज देयर, कैस्केडिंग रोल बैक. ये कैस्केडिंग रोल बैक है क्या? A single transaction failure leads to the serial transaction rollback. Consider the following example. You can see T10, T11 and T12 where none of the transaction has yet committed. मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन का कमिट फॉर्म नहीं आया है. जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है T10, T11 and T12 all are fails. This also we have to roll back. Cascading rollback means यहाँ पे किसी का कमिट नहीं हुआ. अगर किसी का कमिट हो गया उसको हम लोग cascading rollback नहीं कर सकते. Else we have to reschedule it and reschedule it. Whenever it will be totally transaction will be committed successfully, then only we will say it is right now preserved. Else for we have to tell that this is not yet committed. That way it will order just goes on and goes on. That is nothing but we are telling cascading rollback. मतलब क्या है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उस काम को कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कमिट नहीं हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन को हमारे काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो जब तक ये सारे काम कंप्लीट नहीं हो रहे हैं हम लोग बार बार इसको रोल बैक कर रहे हैं. इसे ही हम लोग कर रहे हैं कैस्केडिंग रोल बैक. लेकिन एक ट्रांजैक्शन अगर कमिट हो गया तो उसे हम लोग फिर से रोल बैक नहीं कर सकते हैं. कैस्केड लेस शेड्यूल किसे कहते हैं इसे. सपोज कैस्केड रोल बैक में मैंने पहले ही कह चुकी हूँ कि बार बार रोल बैक हो रहा है. इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. सो कैस्केड लेस शेड्यूल कैसे करते हैं. कैस्केडिंग रोल बैक कैन नॉट ऑकर फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रांजैक्शन Ti and Tj such that Tj reads the data item previously written by Ti. Then commit the operation of Ti appeared before the Tj read operation. मतलब by the slide you can able to get here the cascade rollback, recoverable rollback. यहाँ पे क्या हो रहा है, restriction है कुछ. पहले एक शेड्यूल Ti का कंप्लीशन हो जाए उसके बाद T2 का काम हो रहा है. That way if it is going on then we are calling it cascading rollback. यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है आप सही से एक बार फिर से स्लाइड को पढ़िए. Transaction is a chapter of database management system. It's very vital for any type of inquiry, any type of interview purpose, on an exam also. Several times this parts from area questions may ask. So for that purpose, if you have to read it properly, then don't forget. Many of them you have the discussion that transaction is very easy. Not at all. You have to read it properly, then also only it is possible to understand. So the concurrency control, by giving this we are concluding our chapter right now. We will discuss in another lesson elaborately that. So if the database concurrency control means one database will be done, then another will come. एक database complete हो जाए तो ही दूसरा database आ रहा है. अब यहाँ पे देखिए, database must provide the mechanism that will ensure that all possible schedules are going on a view serialibility and
कॉन्फ्लिक्ट सीरियलिबिलिटी, अगर 2 किए तभी इसे कॉन्करेंसी कंट्रोल कर सकते हैं. इफ दिस पॉलिसी इज मेंटेन देन वी कैन से दिस इज अ कंकरेंसी कंट्रोल डेटाबेस. यहाँ पे एक चीज आपको फिर से एक चीज छोटा सा चीज बता देना जरूरी है. वीक लेवल कंसिस्टेंसी. वीक लेवल कंसिस्टेंसी क्या है? सम एप्लीकेशंस आर विलिंग टू लीव with a weak level consistency, it allowing the schedule that are not serializable. मतलब एक serializable हो रहा है तो दूसरे में serializable नहीं हो रहा है, तो इसे हम लोग trend of accuracy of performance weak consistency कह रहे हैं. जहाँ पे for example read only transactions want to get approximate total balance. The database statistics here computes the query optimization and this is going on. That means it is the weak level of consistency where all the consistency is not followed. Now the isolation we told several times in case of the transaction. So the implementation of isolation we have to tell here. This is the schedule must conflict of view serializability. Conflict serializable and view serializable, both we will discuss here. So after this much, this was our conclusion part. So if you can able to go through it once again. If you have any type of questions, you can give in your comment. We will try our level best to discuss them. I think in this video you can able to get something related to database transaction. At the end of this video, I have to tell you, any type of queries if you have, please give us comment. We will try our level best to solve them. And if it is beneficial for you, then don't forget to like, share and subscribe our channel for more and more videos. Thank you for listening this video.